Hello students, let's study about coordinate systems. Coordinate system is a topic which is very important to solve mathematical problems as well as the physics problems. फिजिक्स प्रॉब्लम्स में किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज होते हैं जब हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करना होता है टू स्टडी सम फिनोमेना और टू स्टडी अ पॉइंट इन अ स्पेस देन वी यूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम किसी पॉइंट की स्टडी कैसे करते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग सम कोऑर्डिनेट्स इन अ स्पेस. सो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते कैसे हैं. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. सपोज वी हैव these axes and this is the representation in three dimension. In three dimension we have x-axis, we have y-axis, we have z-axis. So to represent a point in a space we need these axes which are mutually perpendicular to each other and we have a origin. और हमारे पास एक origin होता है, एक fixed point होता है. Suppose we take a point P in a space. So इसके coordinates हम कैसे define करेंगे. इसके coordinates हम ऐसे define करते हैं. We draw a perpendicular from this x reference point P, say for example firstly to the x-axis. So the distance from the origin to this perpendicular is your x coordinate. Similarly for y coordinate हम एक perpendicular y axis से इस reference point पे draw करेंगे. ये हमारा y coordinate हो गया. Similarly for the z axis, तो z axis से भी जो point यहाँ से z axis से पॉइंट रेफरेंस P पर ड्रॉ करेंगे वो हमारा z एक्सिस z कोऑर्डिनेट हो जाएगा. Along with these coordinates which will represent the magnitude, हमारे पास डायरेक्शंस भी होती हैं. x एक्सिस के along जो डायरेक्शन होती है वो x कैप और i कैप से डिनोट करते हैं. y एक्सिस के along अगर डायरेक्शन उस रेफरेंस की उस पॉइंट की मेंशन करनी है तो y कैप. z एक्सिस के along z कैप, इसको हम j कैप से भी डिनोट करते हैं और इसको हम k कैप से भी डिनोट करते हैं. सो दीज डायरेक्शनल कंपोनेंट्स विच आर नोन एज द यूनिट वेक्टर्स. और यूनिट वेक्टर्स के बारे में 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं. सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स और आई कैप, जे कैप, के कैप. सो दीज आर यूनिट वेक्टर्स एंड इन यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, यूनिटी होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर्स is unity. So unit vectors, they only represent the direction of that reference point. So coordinate system, what coordinate system include? Coordinate system includes an origin, fixed origin, axes which are mutually perpendicular to each other, and unit vectors at every point in the space. And these unit vectors, the direction of these unit vectors, the direction of these unit vectors, it points to increasing order of the coordinate. मतलब इनका जो डायरेक्शन होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का होता है. जैसे एक्स कैप की डायरेक्शन होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट होगा. वाई कैप की डायरेक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाई एक्सिस और जेड कैप की डायरेक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड एक्सिस. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 टाइप के कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं. जैसे कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिन्हें हम अपने 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से देख चुके हैं. कार्टेशियन एंड rectangular coordinate system, cylindrical coordinate system, spherical coordinate system. Spherical and cylindrical coordinate system, they under the category of orthogonal curvilinear coordinate system. Orthogonal curvilinear coordinate system.
So in Cartesian coordinate system, as we know, to represent a point in a space, we use the coordinates x, y, and z. In cylindrical coordinate system, where first of all where the cylindrical coordinate system and spherical coordinate system are used. So cylindrical, as the name is suggesting, these types of coordinate system, they are used where the your problem is of cylindrical type symmetry. For example, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल की अगर हम बात करें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिटेल में हम आगे बात करेंगे इसके बारे में. अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस टाइप ऑफ सिमेट्री में यूज़ होता है. सपोज आपके पास एक सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ सिमेट्री है, ठीक है. इसमें आपने इस सिलेंडर पर आपने जो है इस पॉइंट पर कहीं इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, या आपके पास कोई कोएक्सियल लॉन्ग वायर है, वहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसके सरफेस पे. तो वहाँ आप किस टाइप की सिमेट्री यूज़ करेंगे, वहाँ आप सिलेंड्रिकल सिमेट्री यूज़ करेंगे. और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है रो फाई जेड, या किसी किसी बुक में ये रो जो है ये एस से भी डिनोट करते हैं, एस फाई जेड. तो रो या एस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. सिलेंड्रिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट स्फेरिकल. नेम सजेस्ट कर रहा है स्फेरिकल का कि जहाँ आपकी जो सिमेट्री है प्रॉब्लम की वो स्फेयर की फॉर्म में हो. जैसे आपने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम, या स्फेयर है आपके पास कोई, और ये इसका ओरिजिन हम ले लेते हैं यहाँ पे. तो इस टाइप की सिमेट्री में जैसे पॉइंट चार्ज है तो उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, और यहाँ पर आपने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर तो आप यहाँ पर स्फेरिकल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे. इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आर थीटा फाई. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलेंड्रिकल में हम रिप्रेजेंट करते हैं रो फाई जेड से, और स्फेरिकल में हम रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेट्स का आर थीटा फाई. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हर किसी ने पढ़ रखा होता है. तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दे आर सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दे आर बेसिकली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो जब भी हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो स्फेरिकल के बारे में बात करेंगे. 2 डायमेंशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. तो बच्चे, जो पहला हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे वो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसके बारे में हमने थोड़ी बात कर ली है कि जो पॉइंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है स्पेस में वो हम एक्स वाई एंड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में ड्रॉ किया है, दिस इज आवर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो दिस सपोज दिस इज अ पॉइंट पी ऑफ रेफरेंस, जहाँ पर हमें पार्टिकल की कोई भी उसका फिनोमिना स्टडी करना है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये स्टडी करना है हमने. तो इसके लिए हमने पहले कोऑर्डिनेट चूज़ कर लिए एक्स वाई जेड, ऑरिजिन हमारा फिक्स है. तो सबसे पहले इसमें जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम हमारा पोजीशन वेक्टर. तो जो आर है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उसके यूनिट वेक्टर्स के साथ. तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और जेड के कैप. तो ये हमारा यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है. Now suppose this particle P is displaced to this point P prime. Suppose this particle P is displaced to point
प्री प्राइम, तो इसका जो अब कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम से हम डिनोट करते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट पी का, वो हमारा हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा आर वेक्टर है और ये हमारा आर प्राइम वेक्टर है। तो आर प्राइम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स प्राइम आई कैप, वाई प्राइम j cap, z prime k cap. Now, for example, we have to find out the displacement of this. Let me draw over here. Suppose ये हमारा point origin है और ये हमारा r vector है p, और ये हमारा r prime vector है, और particle जो है वो p से p prime पर शिफ्ट हो गया या मूव कर गया। अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, और पी प्राइम इसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेक्टर है हमारा आर प्राइम माइनस आर वेक्टर, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स प्राइम माइनस एक्स आई कैप, वाई प्राइम माइनस वाई j cap plus z prime minus z k cap. So this is a displacement vector. Similarly, you can obtain the velocity, you can obtain the acceleration. The next thing, if you have the displacement vector, you can easily find out the velocity, and if you have the displacement vector, then you can easily find out the velocity and acceleration and other things in the physical problems. Now, how to represent the magnitude? मतलब अब आपके पास एक वेक्टर है और आपने उस वेक्टर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो हमारा आर वेक्टर है वो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है। अब इसकी इस वेक्टर की डायरेक्शन, तो इस वेक्टर की यूनिट डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होती है, वो हम आर कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। आर कैप इज इक्वल टू r vector divided by mod r, means magnitude of r. So r vector is our xi cap plus yj cap plus zk cap over mod r is under root x square plus y square plus z square. So this will be the unit vector for this position vector r, and it will radially outward. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशन वेक्टर होगी, ठीक है। दिस इज द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ टू समराइज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system, so what we have learned, it's position vector, which is r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. This is a position vector. Its magnitude, which is under root x square plus y square plus z square, and these I, j and k are they are unit vectors of magnitude 1. Other thing, we have seen the position vector, this unit vector of the position vector, which is r vector divided by mod r, and it is represented like this: xi cap plus yj cap plus zk cap, डिनोमिनेटर में रहेगा इसका मैग्नीट्यूड।
वन मोर थिंग, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज जाएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जो रेंज होती है, सो रेंज ऑफ दीज एक्स वेरिएबल और एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स की जो रेंज होती है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब आप ये जो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये हमारे सिस्टम में किसी भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोई सा भी पॉइंट ले सकता है। ऐसे ही वाई की रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस infinity. Similarly for z, the range is minus infinite to plus infinite. So in this way we have completed the introduction of the Cartesian or rectangular coordinate system, and we will move to our next topic. So next topic is plane polar coordinate system. Before going into the orthogonal curvilinear coordinate system, let's talk about plane polar coordinate system. If we have a point charge or we have a point in a space, suppose this is a point in a space P, in two dimension we can represent this point P by x and y coordinates. So this is our x axis, this is our y axis. So we can represent this point P in two-dimensional space with x and y. Other than x and y, we can also represent this point by r and theta. So r and theta, they are the polar coordinate system. ठीक है, आर थीटा हमारे क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। काम इनका वही है, किसी पार्टिकल की या किसी भी इवेंट की पोजीशन स्पेस में डिटरमाइन करना। जैसे हम एक्स वाई को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन में, पोलर में हम आर और थीटा कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब आर और थीटा होते क्या हैं, लेकिन ये टू डायमेंशन में है, ये याद रखिएगा। जैसे ही हम थ्री डायमेंशन में जाएंगे ये हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमें आर देखना है तो ये हमारा ओरिजिन है ओ, तो ओरिजिन से जो इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है रेडियली, दैट इज हम आर आर। तो ये हमारा आर कोऑर्डिनेट हो गया, और थीटा होगा जो इस वेक्टर से एक्स एक्सिस का पर जो ये एंगल मेक कर रहा होगा, ड्रॉ कर रहा होगा, दैट इज आर थीटा। तो ये हमारे आर और थीटा हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें पोलर में सॉल्व करना आसान रहता है। सो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेशन भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अब यहाँ पर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, हमने इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसको ज़रा हम यहाँ पर साइड में इधर कहीं ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा थीटा है, ठीक है, ये ओरिजिन ओ हो गया, ये हमारा पॉइंट पी का रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस डिस्टेंस इज वाई एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर अब राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम लगाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि कॉस थीटा क्या बनेगा, व्हाट विल बी अ कॉस थीटा फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस थीटा इज एक्स अपॉन, और ये हमारा आर है, ठीक है, तो कॉस थीटा इज एक्स ओवर आर। सो इट मीन्स कि जो एक्स है वो क्या हो गया, आर कॉस थीटा। So this is first transformation or first relation between x and r, x, r and theta. Similarly, if we look upon sin theta is y over r. Sin theta is y over r. So it implies that y is equal to r sin theta.
This will be our second relation. So this first transformation, this is second transformation equation. And what about theta? So for theta, you divide both these two, first and second. So dividing first and second, what you get? Dividing first and second, what you get? Tan theta. So tan theta is equal to y over x. So that means theta is tan inverse y over x. So this is our third one. So in this way, you are going to get a transformation equation as well. If you have theta r and theta coordinate, you can easily find out x and y. If you have x and y coordinate, you can easily go for r and theta. Again, from this triangle, you can see that your r vector is under root x square plus y square. So your r vector can also be represented in terms of x and y, and we have the transformation equation. So let's summarize plane polar coordinates. So in plane polar coordinates, we have the transformation equation: x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta, and theta is equal to tan inverse y over x. And your r vector is under root x square plus y square. So in this way, the plane polar coordinate system can be studied. Means we can solve the problem if we have in two-dimensional. So remember, this plane polar coordinate can be applied in two-dimensional problems only.